Okay, fine. So, as far as the previous chapter was concerned, that was classical basis or classical inheritance or classical genetics, in which Mendel was saying that there is a factor that transmits from one generation to the next. He was not knowing at all कि what is this factor basically. कोई factor है जो उसे नहीं पता था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जाता, कुछ जाता है. वो फैक्टर समझने के लिए उसने so many experiments he conducted for 7 years. What was that period of 7 years? What was that period of 7 years? 1856 to 1863. 1856 to 1863. 2017 का क्वेश्चन है ये नीट का. He was experimented on garden bee, that was Pisum sativum, and he almost having more than 10,000 samples. उसके जो sample size था बहुत बड़ा था, large sample size. बहुत सारे experiment करने के बाद test cross, back cross, reciprocal cross and what not. He concluded 3 conclusions and 2 laws. Agreed? Yes. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. So the 3 conclusions were law of dominance, law of segregation, and independent law of independent assortment. Independent assortment. independent assortment को हमने कंसीडर नहीं किया. हमने कंसीडर 2 ही लॉ किए, law of dominance and law of segregation. The second law is known as law of purity of gametes. Perfect. Then we studied, then we learned the deviation from Mendelism, because there were so many plants, so many organisms that were not following the Mendelism. So we concluded that these are the deviation from Mendel's or non-Mendelian inheritance or post-Mendelian inheritance. But when Sutton and Boveri around 1900, जब उन्होंने स्टडी किया chromosomes, then उन्होंने बताया कि that what Mendel was saying, factor, that is basically a chromosome. This is a physical basis of heredity, and proposed 3 theories: chromosomal theory of inheritance, chromosomal theory of sex determination, and chromosomal theory of linkage. Chromosomal theory of inheritance, chromosomal theory of sex determination, and chromosomal theory of linkage. और इन 3 theories के बाद फिर पता लगा कि comparative chart एक देखा गया, तो जैसा chromosome behave करता है, more or less वैसे ही behavior gene करता है. So हमने comparative chart पढ़ा, जिसमें comparison दिखाया गया था chromosome और genes. That was given on your page number 82. हमको ये पता लगा कि जैसा क्रोमोसोम बिहेव करता है लगभग वैसे ही जीन, तो शायद कुछ लाइट दिखने लगा, कुछ उम्मीद की किरण दिखने लगी कि शायद इस फिजिकल बेसिस से और भी कुछ और माइक्रो एनालिसिस किया जा सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एडवांस जेनेटिक्स, then we came to know the basic and molecular basis of inheritance is nothing other than DNA. कि उसका molecular base यदि आप देखें, क्या उस जेनेटिक्स के पीछे क्या बेसिक मॉलिक्यूल है, and that was nothing other than DNA. Perfect. Then DNA ही genetic material है. To find out, we have conducted a series of experiments. Griffith experiment for transformation, MacLeod-McCarthy for biochemical characterization, and Hershey-Chase for confirmation that only DNA is the genetic. जब ये कंफर्म हो गया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल, तो DNA है क्या भाई, तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया. फिर DNA यदि जेनेटिक मटेरियल है तो डेफिनेटली वो सेंट्रल डोग्मा को प्रोसीड करता होगा. इतना लंबा धागा कैसे अकोमोडेट हुआ होगा छोटे से न्यूक्लियस में, उसके लिए हमने उसकी पैकेजिंग पढ़ी. एंड दैट मॉडल वाज Nucleosome model. Nucleosome. न्यूक्लियोसोम मॉडल को बहुत कॉम्पैक्ट करते गए देन क्रोमेटिड एंड देन फाइनली क्रोमोसोम जैसी एक बॉडी हमने, जिसे कि फिजिकल बेसिस बताया गया था कि जो विजिबल होता है इन लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट जीन कैन नॉट बी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. उसके बाद फिर ये सब समझ में आया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो व्हाई डीएनए इज बेटर देन आरएनए. हमने डीएनए वर्सेस आरएनए समझ लिया, जिसका एक बेसिक एडवांटेज ये था कि डीएनए की सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, एंड आरएनए में सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था. दैट वाज मेकिंग इट व्हाट, Unstable. reactive. Second position पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप was making it more reactive and more unstable. और हमने ये भी पढ़ा है यार अब तो, बिकॉज हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, तो हमें ये भी पता है कैटालिटिक टेंडेंसी का भी होता है आरएनए, और वो एक राइबोजाइम होता है, उसका एग्जांपल भी बताया था.
एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम, Peptidal transferase. Peptidyl transferase. वेरी नाइस बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक टाइप का राइबोजाइम है, यानी ये कैटालाइटिक भी है, ये रिएक्टिव भी है, ये अनस्टेबल भी है। ये क्यों बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा भाई? इसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। लेकिन ये बात इन्हीं 4 कैरेक्टर से ये बात भी समझ में आ गई कि यदि एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स में देखे तो शायद जेनेटिक मटेरियल यही रहा होगा, क्योंकि ये म्यूटेट करता है फास्ट, तो इवोल्यूशन फास्ट हुआ हो। अब इवोल्यूशन का रेट आज से करोड़ों साल पहले के रेट से बहुत स्लो है। पहले रेट ऑफ इवोल्यूशन, रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत फास्टर था, तेजी से नई लाइफ बनी। अब नई लाइफ के बनने की उतनी संभावनाएं नहीं है जितनी आज से करोड़ों साल पहले हुई, क्योंकि अब जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लिकेटेड डीएनए टाइप का हो गया है। और इससे ये बात भी पता लगी इन्हीं 4 पॉइंट से कि आरएनए किसी जमाने में डोमिनेंट रहा होगा, इवन डीएनए को भी डिपेंडेंट रहना पड़ा होगा आरएनए पर। वो पेज बहुत काम का पेज है, मैंने पहले भी बताया था। इवन डीएनए को भी आरएनए पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ा होगा प्रोटीन बनाने के लिए, कैरेक्टर बनाने के लिए। तब तक कैरेक्टर भी नहीं बन पाया होगा, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। और आरएनए की डोमिनेंसी एनसीईआरटी 3 रिएक्शन से बताती है, स्प्लीसिंग, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसलेशन। पेज नंबर 104 आरएनए वर्ल्ड, उसके सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लिसिंग इट अराउंड इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये सब आरएनए का, और यही एक देखिए कितने लिंक कनेक्शन के मिल रहे हैं इवोल्यूशनरी। यही 3-4 पॉइंट ये भी बताते हैं कि जो इंट्रॉन्स हैं वो वेस्टिजियल पार्ट है। इंट्रॉन्स की एक्चुअल जरूरत नहीं थी अपने को, हमने इंट्रॉन काट के अलग कर दिए थे। हम जब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो आपने कुछ फ्रेगमेंट्स को अलग काट के अलग कर दिया था, इंट्रॉन और एक्सॉन को जोड़ दिया। यानी आज भी ये वेस्टिजियल प्रेजेंस अपने दिखाते हैं। ये रेमिनिसेंट बताता है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये कुछ पुराने कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है। और इस पर किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था जिसमें लिखा था यस, क्या स्टेटमेंट था वो? यस, पेज नंबर 111, 111. The significance of such complexity is to now beginning to be understood. The split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome. The presence of intron is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represents the dominance of RNA world. आज भी वेस्टिजियल, यानी मैं कहूं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसका मतलब क्या है यार? कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसी जमाने में आज से करोड़ों साल पहले बहुत काम कर रहा होगा। आज वो नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है, जैसे कि इंट्रॉन, मतलब वो किसी जमाने में डोमिनेंसी रही होगी उनकी। तो ये उससे जोड़ते हुए बताया गया। तो वो पेज बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहरहाल जब हमने ये पढ़ लिया कि वो डीएनए ही बेटर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्यों आरएनए से बेटर है? क्योंकि आरएनए उन चारों क्राइटेरिया को फिट नहीं करता, फिटमेंट नहीं दिखाता जो डीएनए दिखाता है। वो 4 कैरेक्टर भी एनसीईआरटी में। उसके बाद फिर हमने डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा, जिसमें लूपिंग, अनलूपिंग और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हमने पढ़े। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस प्राइम पर बनते हैं, किस डायरेक्शन में बनते हैं? 3 prime to 5. 3 prime to 5 prime. 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और किस स्ट्रैंड पर बनते हैं? 5 prime. 5 prime to 3 prime. यानी टेम्पलेट हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक्चुअल स्ट्रैंड ओकाजाकी का हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लूपिंग, अनलूपिंग, लूपिंग, अनलूपिंग, लूपिंग, अनलूपिंग, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स बनने लगते हैं। These are known as Okazaki fragments. Perfect. That are given on page number 107. 107. दो डायरेक्शन उन्होंने 5 to 3 दिखाया है। मैंने आपसे कहा है कभी भी पॉलीमरेज का डायरेक्शन 3 to 5 नहीं दिखाया जा सकता। इट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट वो लैगिंग स्ट्रैंड है, वो उल्टी तरफ आता हुआ दिखा रहा है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीधा जाता हुआ दिखा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, एंड वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. कनेक्ट करते हुए आपको बता रहा हूं साहब। फिर ट्रांसक्रिप्शन पर हम लोग आए, डीएनए से आरएनए बनना, और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो 2 में से एक ही स्ट्रैंड होता है।
एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। कोडिंग, नॉन कोडिंग, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, पॉलीसिस्टोन, डोसिस्टोन, सिग्मा फैक्टर जुड़ने के लिए, रो फैक्टर हटाने के लिए, बहुत सारी प्रोसेस होती है। ऑर्गेनेस बॉक्स, प्रिब्नाउ बॉक्स, टाटा बॉक्स एंड व्हाट नॉट, सब अपन ने देखा। यूकैरियोट होता तो 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट होता तो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो 6 पॉलीपेप्टाइड का बना था, 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 ओमेगा एक्स। उसके बाद जब आरएनए बन गया, वो आरएनए से हमने ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले जेनेटिक कोड का कंसेप्ट पढ़ा, बहुत मजेदार, कि वो ट्रिपलेट होना चाहिए, वो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, उसके बीच में पंक्चुएशन नहीं चाहिए, वो उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वो यूनिवर्सल चाहिए एंड व्हाट नॉट, है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात पढ़ी डॉक्टर दास, एक बात हमने पढ़ी, वोबल पोजीशन। कौन सी पोजीशन वोबल पोजीशन थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? Third. थर्ड पोजीशन वोबल पोजीशन उन अमीनो एसिड के लिए थी, केवल उन जेनेटिक कोड के लिए थी, केवल जो एक से ज्यादा से कोड हो रहे थे। जो यूनिक कोड थे उसमें थर्ड पोजीशन वोबल नहीं हो सकती दोस्त, क्योंकि वो बड़ा यूनिक फीचर है। तो वोबल पोजीशन केवल वहीं पर अप्लाई होगी जो एक से ज्यादा से कोड होते हैं, क्योंकि उसमें तीसरा अल्फाबेट सिग्निफिकेंट ही नहीं, 2 से ही डिसाइड हो जा रहा है। अग्री? तो वो वोबल पोजीशन हमने देखी। फिर हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, तो ट्रांसलेशन में बढ़िया सा मैंने आपको डांसिंग स्टाइल में मैंने आपको बताया कैसे वो शिफ्ट होता है, कैसे वापस आता है, कैसे ए साइड, बी साइड, ई साइड, ए पी ई, ए पी ई, ए पी ई, और राइबोजाइम बताया, ट्रांसलोकेज बताया, और बाद में उसका डिसोसिएशन होकर ग्रूव में जाना भी बताया। यही प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल्ड मैनर में चलेगा, उसके लिए हमने रेगुलेशन भी देखा, एंड द मॉडल वाज Operon model. Operon model. proposed by Jacob and Jacob and Monod. studied on E. coli bacteria, है ना। that Lac-operon is a negative type of operon, जिसमें दो मोड में काम करता है, in the absence of inducer and in presence of inducer। मशीन कब स्विच ऑन होती है और कब स्विच ऑफ होती है बताइए? प्रेजेंस में स्विच ऑन के स्विच ऑफ? Presence में on. स्विच ऑन, क्योंकि लैक्टोज रहेगा तो वो जो रिप्रेसर वो लैक्टोज से जुड़ जाएगा, तो मशीन स्विच ऑन। यदि लैक्टोज नहीं है मीडियम में, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इट इज स्विच ऑफ। इसीलिए इसे कहा गया इंड्यूसिबल लैकोपेरॉन, जिसके 3 एंजाइम्स है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइज। और वो पूछा जाता है एक्स से कौन सा, वाई से कौन सा और जेड से कौन सा, या जेड वाई ए जो भी दिया गया होगा। परफेक्ट। यहां तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, और मैंने छोड़ दी थी आगे की कहानी अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक चीज अभी पेज पलटाते हुए मुझे दिखी, एंड दैट इज फ्रेम शिफ्ट एंड पॉइंट म्यूटेशन। एनीवन हु कैन डिफाइन? Anyone who can define? Anyone Insertion, आप बोलिए। insertion or deletion of one or two base changes the reading frame from the point of insertion or deletion. However, such mutations are referred to as frame shift mutation. नताशा मैडम, मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने आपसे कहा मुझे समझाकर बताइए। दोस्तों, यदि एक बेस या एक बेस पेयर, 1 बेस और 1 बेस पेयर, 2 बेस और 2 बेस पेयर्स, 1 बेस और 1 बेस पेयर, 2 बेस और 2 बेस पेयर्स, किसी डीएनए के स्ट्रैंड में एक बेस या बेस पेयर, 2 बेस या बेस पेयर में यदि चेंज आता है, ए टी इनमें कोई चेंज आता है तो वो पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन तीसरे में 3 या मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 में बदलता है तो कंप्लीट एक कोडॉन बदल जाएगा ना, अरे पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो जाएगा। तो एज इट इज फ्रेम विल बी शिफ्ट बट रिमेन अनऑल्टर्ड ऑनवर्ड्स, आगे की तरफ वो अनऑल्टर्ड रहेगी, बस फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे किसी इसको अपन कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन,
or we can call it frame shift mutation. Perfect. That's all, my dear. So now I am switching to evolution. I'm switching to evolution. और evolution पढ़ने के बाद मैं आपको दोनों चैप्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस संडे आपका टेस्ट आई थिंक, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इवोल्यूशन तो उसमें नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें आ रही है, एक्सेप्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपको डीसी क्लास, मेरा कोई क्लास अगला है या नहीं, लेट मी चेक। Yes. कब है? Saturday. सैटरडे का क्लास मेरा डीसी क्लास हुआ फाइनली। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बढ़िया से लगा लीजिए और जितने भी सिलेबस के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स उस दिन पूछ लीजिए टेस्ट पेपर का, है ना? तो सैटरडे विल बी आवर डीसी क्लास। लेट अस स्टार्ट विद इवोल्यूशन। डालिए हेडिंग इवोल्यूशन। और सिर्फ हाइलाइटर अपने साथ रखिए क्योंकि एनसीईआरटी ही काम का कंसेप्ट है। हेडिंग डालें इवोल्यूशन। चलिए, और बच्चों पेन डाउन करके सिर्फ सुनते रहिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ सुनते रहिए इवोल्यूशन में क्या बताना चाह रहा है ना? मैंने आपसे कहा इवोल्यूशन इज अ नाउन फॉर्म, सो यू मस्ट बी एग्री एंड द प्रोसेस इज टू इवॉल्व। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जितना कंसंट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बता दूं केवीपीवाई का यदि सबसे वेटेज वाला कोई पार्ट इन तीनों चैप्टर जेनेटिक्स की यूनिट में है तो वो इवोल्यूशन, और पूरे 12th में यदि कुछ है दैट इज इकोलॉजी। एक बुक आती है केवीपीवाई की स्पेशल प्रिपरेशन के लिए और वो बुक होती है रीस एंड कैम्बेल, इंग्लिश ऑथर है रीस एंड कैम्बेल। रीस एंड कैम्बेल जो ऑथर हैं वो सबसे ज्यादा फोकस यदि किसी बात पे करते हैं तो वो है इवोल्यूशन और इकोलॉजी, यानी पॉपुलेशन, दोनों को मिलाकर कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा आई शुड से व्हेन यू नीड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, वो क्वेश्चन बस इन्हीं दोनों में आता। तो एक बार बेस पकड़ लिया ना अपने इवोल्यूशन का तो काम आसान हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा लेटरल तरीके से सोचना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है इवोल्यूशन, है ना? तो इवोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। इवोल्यूशन इज बेसिकली अ नाउन व्हिच इज द हैविंग वर्ब दैट इज टू इवॉल्व, and to evolve, literal meaning of that to evolve or the word evolve is something like when gas is evolving from the surface of a liquid। यदि मैं सही कह रहा हूं तो केमिस्ट्री में कभी आपने एक्सपेरिमेंट किए हो तो टेस्ट ट्यूब में जब आप कुछ डालते हैं, ऐसा कोई लिक्विड जिसमें कुछ मटेरियल डालने पर एक इफ्लोरेसेंस यानी बुदबुदाहट के साथ पटपट पटपट होती हुई कुछ निकलता है, तो लिक्विड की सरफेस से गैस का निकलना इज नथिंग अदर देन इवॉल्व। और ठीक वैसा ही दोस्तों, जैसे मैं घर में बेसन बना रहा हूं या घर में दाल पक रही है जो गाढ़ी हो गई है और गैस का बर्नर बड़ी फ्लेम पर है और दाल में से आवाज आ रही है पट 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 पट, क्यों? क्योंकि उस लिक्विड की सरफेस से कुछ गैस निकल रही है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है इवॉल्व, दैट इवॉल्व मींस समथिंग गैस लाइक सब्सटेंस व्हेन रिलीजिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। और देखिए कितना परफेक्ट बैठता है वर्ड, कितना परफेक्ट बैठता है। हमारी जो ओरिजिन मानी जाती है दैट इज फ्रॉम वाटर। यदि 11 का थोड़ा भी कंसेप्ट ध्यान हो तो ध्यान से आप अपना और प्लांट का किसी का भी इवोल्यूशन देख लीजिए, स्टार्टेड फ्रॉम वाटर। इन केस ऑफ कॉर्डेट्स यू स्टार्टेड विथ स्पाइसेस। इनफैक्ट उसके भी पहले यदि मैं जाऊं तो आपको जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे मैक्सिमम एक्वेटिक में। मैं तो चलिए कॉर्डेट्स की बात करता हूं। यू स्टार्टेड विद पाइसेस, यू कम्स टू द एम्फीबिया, यू कम्स टू द रेप्टिलिया व्हिच इज स्टिल बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एम्फीबिया तो दोनों में ही रहता था, रेप्टिलिया थोड़ा सा लैंड पर ज्यादा गया, एव्स तो उड़ने लगे, और मैमल्स तो लैंड पर हर कहीं रहने लगा वो मैमल्स। सो इवोल्यूशनरी ट्रेंड एनिमल का भी पानी से ही बताता है। और तो और दोस्तों, इफ यू थिंक अबाउट द प्लांट्स,
Just imagine and just recall. You started, I should say, plant world, not lower ones. आपने यदि एल्गी एक ऐसा प्लांट आपने पढ़ा होगा, या एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा जो आपने मोनेरा से लेकर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे तीनों में पढ़ा होगा. फंजाई में तो हो नहीं सकता. मोनेरा, प्लांटे और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों में पढ़ा. मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा है वो डायटोमिशियस अर्थ. डायटोमिशियस अर्थ याद आ रहा है? यस सर. प्रोटिस्टा Yes, में sir. पढ़ा. उसका नाम भी मुझे याद आ रहा है, आई थिंक Golden algae. डायटम. डायटम सी था उसका. कोई कौन से एल्गी कहते थे उसको? कौन सी एल्गी कहते थे? क्राइसोफाइटा. Golden algae. क्राइसोफाइटा. कौन सी एल्गी कहते थे उसे? गोल्डन एल्गी. am I right? गोल्डन एल्गी दैट वाज. चलिए, और प्लांटे में तो आपने पढ़ा ही प्लांट वाटर से. यू स्टार्टेड विथ रोडोफाइसी, you started with rhodophysi, then phaeophysi, and then chlorophysi. Getting my point? एक वो जो बिल्कुल डेप्थ में, जहां सनलाइट में नहीं जा रहा, रोडोफाइसी, फिर बीच में आए फियोफाइसी, सरफेस पर आए क्लोरोफाइसी, और उसके बाद अब आए थैलोफाइटा. थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, जो दोनों में रह सकता था, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा. देन यू कम टू द टेरिडोफाइटा, देन यू कम टू जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म्स. अच्छे खासे टेरेस्ट्रियल प्लांट. यानी whatever the evidences we have, we started from water. तो कितना बढ़िया शब्द मैंने आपको बताया. To evolve, the releasing out of some gases from the surface of liquid. यानी इसका मतलब क्या है? ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम लोग गैस के बने हुए. यस. अब थोड़ा सा फनी वे में जाऊं, लेकिन लॉजिकल जाऊं. ये मूवी वाले जो है, ये कोई नॉनसेंस मूवी थोड़ी बनाते हैं जिसमें आत्मा यानी सोल एक धुएं की तरह दिखती है. देखना कब किसी की डेथ होती है तो जब वो आत्मा, उसके प्राण निकलते हैं उसके, तो ऐसा वो धुआं घूमता हुआ, हॉरर मूवीज में जो दिखाते हैं ऐसा धुआं घूमता हुआ निकल जाता है. मतलब कुछ तो बेस रखते हैं मूवी, है ना. बॉलीवुड एकदम नॉनसेंस तो नहीं है, कुछ तो थोड़ा सा सेंस रखते हैं, है ना. पेड़ों के आसपास घूमने के अलावा, डांस के अलावा कुछ तो सेंस है, लॉजिकल. यानी आप इस बात को समझिए कि यार कहीं ना कहीं गैस ही शायद सोल है. एंड यस, इस बॉडी में उस सोल के आने के बाद ही इसे लाइफ कहते हैं. और वो सोल खुद एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. दैट इज नथिंग अदर देन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ गैस. ये उसके बिना ये कुछ नहीं है नॉन लिविंग. यानी समथिंग, सी देखिए कैसे कनेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको. समथिंग लाइक नॉन लिविंग, something like non-living which comes into the non-living probably becomes living. Virus, है ना. Therefore the virus is, आज भी virus is called a connecting link between non-living to living. जो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, वो बॉडी में आया तो लिविंग है. बिल्कुल वैसी गैस की तरह. बाहर निकली हुई आत्मा कोई काम की नहीं. नॉन फंक्शनल, आई थिंक आई शुड से. सिवाय छोटे बच्चों को और कहानियों में डराने के अलावा उस आत्मा ने किया ही क्या है यार, है ना. बट वो जब शरीर में आ जाए तो यार वो लिविंग है. सो वायरस इज टुडे इटसेल्फ इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग टू लिविंग. इसलिए पहली लाइफ भी बताई जाती है प्रोटोवायरस. पहली लाइफ भी बताई जाती है प्रोटोवायरस, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ वायरस. वायरस भी छोड़ो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वायरस. और 11 में पढ़ा है हमने नॉन लिविंग वायरियन, और बॉडी में आने के बाद वायरस. नॉन लिविंग को कहते हैं वायरियन, और लिविंग में आ गया तो वायरस. सो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे एविडेंसेस फ्रॉम सो मेनी सोर्सेस वी हैव दैट प्रूव्स यस वी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग सम structures like gaseous substance. Perfect. उसको मैं करूंगा, कोरिलेट करूंगा मैं कि कैसे गैसेस के कॉम्बिनेशंस बने. और यकीन मानिए, मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिला दूंगा कि आप एक नॉन लिविंग गैसियस मॉलिक्यूल से बने हुए लिविंग स्ट्रक्चर है.
और इसीलिए तो 11th में हायरार्की पढ़ाते समय बताया जाता है, क्या पढ़ाया, सीक्वेंस क्यों ऐसा दिया जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ that makes tissue system, organ system and organism. But this cell is composed of what? Atoms and molecules. And those molecules are known as biomolecules. And those molecules are known as biomolecules. तो बायोलॉजी ऐसे ही तो पढ़ते हैं, सबसे पहला लिविंग वर्ड पढ़ाया जाता है, फिर सेल और सेल के साथ बायोमोलिक्यूल क्यों पढ़ाते हैं, अब समझ में आए। सेल और सेल डिवीजन के साथ बायोमोलिक्यूल क्यों पढ़ाते हैं भाई, सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अग्री, दिस इज द हायरार्की ऑफ लाइफ। इसके नीचे हायरार्की तो है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड व्हाट नॉट, बट दिस हायरार्की इज ऑफ नॉन लिविंग। इसीलिए तो बायोमोलिक्यूल को सेल के साथ पढ़ाया गया, ये वो मॉलिक्यूल है जो सिस्टम को बायोलॉजिकल बनाते हैं, बायोस बनाते हैं, लिविंग बनाते हैं, और फिर यहां से हायरार्की शुरू हुई। और फिर इसलिए सेल बायोलॉजी पढ़ाने के बाद पढ़ाया गया आपको ऑर्गन सिस्टम की फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, और इस ऑर्गेनिज्म को बेस में बुलाकर आपको पढ़ाई जाएगी इकोलॉजी, आपको पढ़ाया जाएगा इवोल्यूशन। तो ऐसा सिस्टमैटिक वो अरेंज किया गया है, तो जब भी आप भी पढ़े तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। पहले पढ़े अपन बढ़िया से सेल या बायोमोलिक्यूल, और फिर सेल डिवीजन, फिर फिजियोलॉजी, उसके पहले लिखा टिश्यू जरूर पढ़ना चाहिए कि स्क्वेमस कौन सा है, एपिथेलिया कौन सा है, क्यूबॉइडल क्या है, फ्लैट एपिथेलिया क्या है ना, स्ट्रैटिफाइड क्या है, तो आज और आसानी से समझ में आता है फिजियोलॉजी। पर स्विचिंग बैक टू आवर इवोल्यूशनरी पॉइंट, तो मैंने आपसे कहा कि सेल थ्योरी कहती है सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनीस सेलुलिस सेलुलर। सेल थ्योरी 11 की याद करो, सेल बायोलॉजी का पहला ही पेज, ओमनीस सेलुलिस सेलुलर, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल सेल से बनती है, सेल सेल से बनती है, सेल सेल से बनती है, अग्री। अरे भाई पहली सेल कैसे बनती है, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, अग्री, पहली लाइफ कैसे बनती है। तो ये इवोल्यूशन वर्ड देखिए कितना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है कि अपने आप में दो कंसेप्ट कैरी किए। पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दूसरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब हम लोगों का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, लिक्विड की सरफेस से गैसियस फॉर्म में पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, प्रोटोवायरस। फिर ये सोचा जाता है कि उस प्रोटोवायरस से वायरस, मोनेरन्स, प्रोटिस्टन्स, फंजाई, प्लांटेन, ये सब कैसे बने होंगे, उन सब के लिए पढ़ना पड़ता है क्या, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उन सब के लिए पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़नी पड़ती है थ्योरीज। लेमार्क साहब क्या कहते हैं, डार्विन क्या कहता है, मॉडर्न जेनेटिशियंस क्या कहते हैं, इन सब में पढ़ना होता है ऑर्गेनिक थ्योरीज या थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो मेरी पूरे चैप्टर के दौरान दो ही थीम रहे, हार्डली एक चैप्टर, आज का चैप्टर इस पर फोकस होगा क्योंकि केवल पहला पेज इस पर दिया हुआ है, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन चलेगा। इससे इसी कंटेक्स्ट में मैं उठाऊंगा तुरंत इकोलॉजी, इसी कंटेक्स्ट इसको पढ़ाने के बाद, तो वो इकोलॉजी और इसको आप कोरिलेट कर पाएंगे और केवीपीओ में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ऐसा आ गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले क्या आपको ये पता होना जरूरी नहीं है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो दोस्तों 12th की बात यदि करूं मैं, तो 12th में यदि क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो इन दोनों को ब्रीफ एक एक दो लाइन बता दीजिए, एक या दो लाइन। लेकिन क्वेश्चन केवल ओरिजिन ऑफ अर्थ आया तो आपको आगे का दो लिखने का जरूरत, ये आया तो इसको समझाइए फिर इसको समझाइए, ये आया तो इन दोनों को एक्सप्लेन कीजिए फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन पहला ही पॉइंट आया
तो आपको केवल ओरिजिन ऑफ अर्थ बताना। तो पहला कंसेप्ट बताता है लोकेशा मैडम कि अर्थ कैसे बनी। दूसरा पॉइंट बताता है कि उस बनी हुई अर्थ पर, प्रिया मैडम, उस बनी हुई अर्थ पर तनुष्का मैडम पहली लाइफ कैसे आई। और तीसरा कंसेप्ट बताता है कि वो जो पहली लाइफ आ गई थी अर्थ पर, वो पहली लाइफ से आप जैसे खूबसूरत लोग कैसे बने, है ना। और इसके लिए डार्विन साहब ने, यू कांट बिलीव, सो जीनियस पीपल आर, कितने बुद्धिमान लोग हुआ करते थे यार। धीरे धीरे बुद्धिमानी कम हो रही है क्या कुछ? क्या लगता है आपको, इवोल्यूशनरी ट्रेन में आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट अलग अलग फील्ड्स में। ओके वेदांत, मतलब तू ये सीधे सीधे इंसल्ट कर रहा है मेरी कि मेरे से ज्यादा आईक्यू तेरा है, इज इट? नो सर नॉट लाइक। अरे तो फिर यार तू इवॉल्व, यदि तू इवोल्यूशन में है तो डेफिनेटली मुझसे ज्यादा आईक्यू तेरा होगा। यस, आई एग्री विद दिस। आईक्यू लेवल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ी है। लेकिन एक फेज आया था यार, ब्रेन की कैपेसिटी फिर रिवर्ट मोड में जाने लगी, रिवर्स। यस, साइंस से कहता है वी स्टार्टेड विथ 400 सीसी, ब्रेन का कैपेसिटी केवल 400 सीसी का था, और आज वेदांत आपकी ब्रेन की कैपेसिटी 1600 सीसी है, 1600 सीसी। कैन यू इमेजिन? 400 से 4 टाइम्स ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। इन द सेम वे मोर न्यूरॉन्स हैज बीन अकोमोडेटेड, एरिया बड़ा है ना, सरफेस एरिया, तो मोर न्यूरॉन्स आर अकोमोडेटेड एंड इंटेलिजेंसी क्वोशंट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट ब्रेन कैपेसिटी रिवर्स होना शुरू हो गई है 80s में, ऐसा रिसर्च आया, एंड गॉड नोस क्या होने वाला है ना। बहरहाल यस, आई डू अग्री कि इंटेलिजेंसी बढ़ती जा रही, अग्री। अब वो 2-3 कैरेक्टर्स हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हमें ये लगेगा कि यस इवोल्यूशन होता जा रहा है, लेकिन हाउ ब्रिलियंटली डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना, द फादर ऑफ दैट कंप्लीट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आई शुड से, एक बढ़िया स्टेटमेंट में उन्होंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया ना, सिंगल स्टेटमेंट। descends with descent modification। descent का स्पेलिंग, सुंदर वाला descent का स्पेलिंग यही है ना, आई थिंक यही है, descends with descent modification। सी कितनी बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया। descends मतलब descendants, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, इनको कहते हैं एंसेस्टर्स। descends with descent modification, हमारे एंसेस्टर्स में आने वाला खूबसूरत परिवर्तन is evolution। yes, गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, लीमर, उनमें होने वाला धीरे 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 उन डिसेंट्स में होने वाला खूबसूरत चेंज इज नथिंग अदर देन इवोल्यूशन। कंप्लीट स्टेटमेंट है, डिसेंट्स विद डिसेंट। हम कौन है? वी आर डिसेंट्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन। वेदांत भाई समझे कि नहीं कुछ? व्हाट वी आर? आयुष, शरण्या, Yes, sir. तनुष्का, ऋतुजा, कृष्णा, Yes, sir. हर, Yes, sir. अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब इतना बढ़िया मैं उसको कनेक्ट किया हूं। व्हाट वी आर? वी आर नथिंग अदर देन आवर डिसेंट्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन। उनके पास टेल थी, खूबसूरत नहीं दिखते थे, अपने पास टेल नहीं है। उनका स्नाउट बड़ा था, हमारी तरह था, उसका स्नाउट बड़ा था, अपना कम हो गया, थोड़ा खूबसूरत दिखने लगे। दांत बड़े बहुत बिल्कुल अगर लाइक टीथ हुआ करते थे यार, वो छोटे हो गए। कान ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे, पूरा हेयर ही हेयर हुआ करता था, थोड़ा सा कम हो गया, खूबसूरती आ गई। सो व्हाट वी आर? डिसेंट्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन। एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दर्शिता, चैतन्य, आयुष, अमृता, पल्लवी, हम इस बात से अग्री हैं कि हम लोग खूबसूरत हैं। यस और नो? Yes, sir. मतलब तुम इस बात से भी अग्री हो कि मैं भी खूबसूरत हूं। ये एक अलग बात है कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत। यस और नो? Yes, sir. Yes. सीधे सीधे इंसल्ट, मतलब सर की भाषा में सीधे सीधे इंसल्ट,
कि सर हम आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अमृता No, मैडम, sir. अरे गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आई एग्री, यू पीपल आर मोर ब्यूटीफुल देन मी एंड योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर ब्यूटीफुल देन यू, है ना? चलिए, हाँ सर. इवोल्यूशन को समझ, एक बेसिक पॉइंट पकड़ में आया कि इवोल्यूशन का, कि हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अर्थ। उस ओरिजिन ऑफ अर्थ, पहले अर्थ को समझ लेते हैं। दो ये पूरा तरह से फिजिक्स है, इसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, बट सिंस इट इज गिवन इन इवोल्यूशन वी हैव टू लर्न कि वो अर्थ, वो बिग बैंग थियरी, एक बड़ा सा विस्फोट, बड़ा सा एक्सप्लोजन, और दुनिया जहां के प्लैनेट्स का बनना, और फिर उसके पीछे नॉनसेंस टाइप की सो मेनी इलॉजिकल थियरीज कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए। आई एम नॉट सॉरी टू से, बट मैं किसी भी प्रकार की किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस पात्र का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसको एक ज्ञान की भांति लिया जाए, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने तथास्तु कह दिया। उधर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह साहब आए, उन्होंने तथास्तु कह दिया। पहले दिन प्लांट्स, दूसरे दिन बर्ड्स, तीसरे दिन पानी, एंड जो भी। सो ऑल दीज आर मिथ, मतलब इन द टर्म्स ऑफ साइंस। दो आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन ऑलमाइटी, मैं बहुत आस्तिक टाइप का हूं, मतलब नास्तिक टाइप का बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस को भी मुझे समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यदि मैं साइंस से कन्विंस नहीं हुआ तो मैं आपको क्या कन्विंस करूं? सो यस, आई डू अग्री कि ये सब ईश्वर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं होते हैं, है ना? वो प्रहलाद, तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, डू यू नो भक्त प्रहलाद? एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर. भक्त प्रहलाद के पिताजी तो इसी बात से खफा रहते थे कि उसको हर कहीं विष्णु दिख जाते थे, है ना? हर कहीं विष्णु दिख जाते थे उसको, और वो हर बार फेल हुए उसके पिताजी। एक बार वो उन्होंने क्या पिलर तोड़ दिया, उसमें से विष्णु निकल आए, मतलब जहां वो करे वहां से विष्णु निकल आए थे, क्योंकि उसका कहना था कि हर कण कण में ईश्वर का वास हो, है ना? चलो यार, थोड़ा प्रवचन की तरफ जा रहा हूं मैं ना, बट नो प्रॉब्लम। हम इस बात को मानते हैं कि वो सारे लॉजिक, सारी थियरीज अपनी जगह मिथ है मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से। सच क्या है? सच ये है कि एक अननोन सा यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ, मतलब यूनिवर्स में नहीं, एक एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी, जिसमें हमारी गैलेक्सीज हैं मिल्की वे, आकाश गंगा, है ना? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी में कुछ प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारा एक प्लैनेट कौन सा? अर्थ। तो पहले उसका बनना सोचते हैं, उसका बनना समझते हैं, क्योंकि हमें लॉजिकली जाना है। फिर उस पृथ्वी पर अपन देखते हैं कि रिसोर्सेस कैसे आए, एटमॉस्फेयर कैसे आया, वाटर कहां से आया, कैसे आया होगा, और फिर उसमें से गैसियस फॉर्म में कैसे निकला होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और हमारी बॉडी बनी। तो इन अ लॉजिकल वे वी विल प्रोसीड। नताशा मैडम, समझिए क्या? Yes, sir. क्या लग रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है टॉपिक? बोर लग रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है? Interesting. Interesting, sir. सर Very interesting. So I expect सर ऑफलाइन होता तो और इंटरेस्टिंग होता. हाँ, नो डाउट, नो डाउट। यदि यही ऑनलाइन होता ना तो ईश्वर की कसम मजा आ जाती। मतलब मैं तो सबको, शायद मेरे इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आधी जनता तो इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट बनने का सोचने लगे, जैसे क्लासिकल जेनेटिक्स के बाद लोग जेनेटिशियन बनने का सोचने लगे ऑफलाइन, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑनलाइन में हुई, लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ना ही बंद। विधान भाई सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर. कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसी जील के साथ पढ़ना है दोस्तों, है ना? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि मैं अपनी जील में कमी नहीं आने दे रहा हूं, है ना? बट वी आर मिसिंग समथिंग, डोंट वरी। पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं ना। तो अब पहला कंसेप्ट अपना क्या चलना है, यानी 3 कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलने। कंसेप्ट नंबर 1, ओरिजिन ऑफ Earth. दूसरा, ओरिजिन ऑफ Life. Life. एंड तीसरा, ओरिजिन, सॉरी, ऑर्गेनिक Evolution. अब बच्चों ओरिजिन ऑफ अर्थ की जहां तक बात है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ तो मैं क्या ही लिखाऊं और क्या ही पढ़ाऊं, है ना? क्योंकि ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए तो हाइलाइटर अपने साथ में रखना पड़ेगा, और मैं फ्लो चार्ट बनवा दूंगा, दैट्स इट। जैसे जैसे मैं यदि समझूं तो
पेज नंबर 127 कहता है द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हाईलाइट तो यहीं से शुरू हो गया, सीधा सीधा सवाल आ गया 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, considering the size of universe, earth is indeed a speck. The big bang theory attempts to explain to us the origin of universe. It talks a singular huge explosion, underline huge explosion, unimaginable in physical terms. फिर क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपांड एंड हेंस टेम्परेचर केम डाउन। फिजिक्स है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री कह लो, फिजिक्स कह लो भाई। जब एक्सपांड हुआ तो टेम्परेचर क्या होने लगा, केम डाउन। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। फिर अंडर ग्रेविटी गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म Earth about 4.5 billion years back, लगभग 4.5 बिलियन ईयर बैक क्या हो गया, अर्थ, है ना। लेकिन अर्ली एटमॉस्फेयर नहीं था, अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास, और उन्होंने सरफेस को कवर कर लिया। अब यार ये सारा पूरा जो भी लिखा है ना स्टेटमेंट्स, इसको मैं एक फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, फिर आप पढ़िएगा कि सर ये छूट गया तो मुझे बताइए। वैसे मैंने छूटने नहीं दिया है, बट स्टिल कोशिश करते हैं, मैं लिखाता हूं, आप उसको रीड भी करते जाइए और मेरे साथ लिखते भी जाइए। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, ओरिजिन ऑफ अर्थ। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ का फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलिए, शुड आई स्टार्ट विद बिग बैंग? Yes, sir. बिग बैंग भाई, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है, इट इज अ सिंगल बट ह्यूज एक्सप्लोजन। बिग बैंग, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिवर्स एक्सपांड। उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टेम्परेचर केम डाउन। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म। जब ये बन गया, गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटी, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी। जब ये हो गया, स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस, stars and clouds of gases and dust, clouds of gases and dust। और इस क्लाउड को क्या कहा गया, स्पेशली नेब्यूला। इन क्लाउड को, गैसेस और डस्ट के जो क्लाउड बने उसे कहा गया नेब्यूला, और इन्हीं ने बनाया क्या, गैलेक्सीज, और इन्होंने बनाया अ बिग यूनिवर्स। जब यूनिवर्स बन गया, गैलेक्सीज बन गई, तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4.5 मिलियन ईयर्स बैक, 4.5 मिलियन ईयर्स बैक क्या बना, आई थिंक अर्थ। 4.5 years back, early earth, primitive earth। मेरे साथ ही नोट कर रहे हैं, जब प्रिमिटिव अर्थ बन गई तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज। वाटर वेपर्स
water vapors, ammonia, methane, release from molten mass. Release from molten mass. Molten mass covered Earth surface. फिर UV rays broke up water. UV rays broke up water into H2 and O2. जब इसे तोड़ दिया गया H2O2 में, O2 combines with आपको एक ही सीक्वेंस में लिखते चलना है, मैं तो बोर्ड नहीं इसलिए इधर उधर लिख रहा हूं. O2 combines with ammonia और क्या क्या था उस समय, CH4 to form different compounds. फिर उसकी वजह से बना ओजोन लेयर. ओजोन लेयर फिर उससे बना विद द कूलिंग ऑफ अर्थ, भाई ओजोन प्रोटेक्शन आ गया, तो विद द मोर कूलिंग ऑफ अर्थ, the water vapors fell as rain. Vapors fell as rain to form oceans. और लगभग 4 billion years back, life comes into water. Please note. सर वो प्रिमिटिव अर्थ के पहले 4 बिलियन है ना, मिलियन नहीं है. सर एनसीईआरटी में बिलियन दिया है. बिलियन ही तो लिखा ना मैंने, ये वाला 4.5 वाला सर. के पहले ये भी प्रिमिटिव बिलियन है, सॉरी. बिलियन के बाद बिलियन आता है ना, अरे मिलियन के बाद बिलियन आता है ना. Yes. बिलियन. लॉजिक लगाना चाहिए था अपन ने कि लाइफ पहले आ गई और बाद में कैसे आई होगी, तो इट शुड बी बिलियन. वेरी गुड स्नेहा मैडम. सर हाँ बोलो. सर 4 billion year back life come into water, हाँ then the water is salt. हाँ तो सर वो वाटर सॉल्टी होगा क्या? वाटर सॉल्टी क्यों होगा भाई? सर फिर ओशियन बने ना. अरे तो ओशियन वाटर हो, सी वाटर हो भैया, उसमें सॉल्ट तो लाइफ के आने के बाद आए होंगे ना. वो तो फिशेस जो होती है मरती हैं तो उसका वो सॉल्ट बनता है. और वैसे भी मिनरल तो होंगे ना पहले, लाइफ के पहले तो मिनरल ही होंगे. अथर
Yes, sir. Sir, हाँ बोलिए, sir, I have a doubt. हाँ बोलिए बोलिए। Sir, Jupiter is all made up of gases, right? Pardon, फिर से। Sir, Jupiter is all gases, right? Jupiter is all gaseous। Yes. भाई भाई ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट हाँ यदि मान भी लिया तो तो अभी यहाँ पे है कि गैसेस सब कंडेंस हो रहे, तो कैन वी से लाइक जुपिटर भी कुछ सालों मतलब बहुत सालों बाद गैसेस कंडेंस हो जाएंगे और शायद उस पे भी लाइफ आ जाएगी। हाँ हाँ दोस्त, कुछ भी हो सकता है। एलियन एलियन का कंसेप्ट मजाक कंसेप्ट नहीं है, ये सच भी हो सकता है, यकीन मानिए ये हो सकता है। मतलब आई स्ट्रांगली एंड फर्मली बिलीव एंड लॉजिकली आई कैन बिलीव कि दूसरे भी ग्रह पर कहीं ना कहीं कोई जीवन तो होगा, 100% होगा, है ना। अपन तो पता लगाते हैं, आप निकलते हैं जहां पर ये नीट वीट का झंझट ही ना हो, उधर ही पे चलते हैं अपन, जहां नीट का चक्कर ही ना पड़े। विधान भाई, हाँ सर। अपन ही पहले आदमी रहे, एडम और ईव, बढ़िया वहीं पर संसार बसा लें, बाल बच्चे हो जाएं, फुर्सत, मतलब टेंशन ही नहीं, सारा संसार, पूरी धरती अपनी रहेगी, वो किसी दूसरे प्लेनेट पे। यस और नो? यस सर। हाँ, मजा आ जाएगा, सोच के मजा आया। मतलब नोटेड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा एक मेजर टास्क जो रह गया है वो ये मतलब पढ़ना अब आपको है। मैंने तो पेज आई शुड से 127 की समरी दे दी, आप 127 की समरी दे दी मैंने। अब आप मुझे कल या अगले लेक्चर में बताएंगे सर वो स्टेटमेंट या वो पार्ट आपका रह गया, मुझे बताइएगा, जो भी अपन देख लेंगे। इसके बाद मुझे सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, वो पेज नंबर 127 पे ही सेकंड पैराग्राफ में वो पैंस्पर्मिया दिया है ना, स्पोर्ट्स वाला, वो हाँ। नहीं समझा। हाँ, थ्योरी है वो, तो वो थ्योरी पे तो आता हूं अभी मैं। Did life come from outer space? Some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought units of life called spores were transferred to different planets, including Earth. Panspermia is still a favorite idea for some astronomers. Panspermia, स्पर्मा मतलब होता है सीड, ग्रीक भाषा के शब्द नहीं सारे, पहले ये सब ग्रीक थिंकर हुआ करते थे, है ना। तो ये जो स्पर्मा होता है दैट मींस सीड, इसलिए आपको पता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा क्योंकि ये सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म के पहले सीड नहीं होती, टेरिडोफाइट तक सीड नहीं है। कैन यू रिकॉल दिस? Yes. यस सर। सीडेड प्लांट को स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। सबकी अपनी अपनी कंसेप्ट। जिसमें थैलस वो थैलोफाइटा, जो दोनों पे रहले वो ब्रायोफाइटा, जिसमें सीड ना वो टेरिडोफाइटा, जिसमें सीड आ गए वो स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें फ्लावर आ गए वो एंजियोस्पर्म्स, है ना। अलग अलग बड़ा सीक्वेंस, मजेदार सीक्वेंस है, तो उसको सही से पढ़े आपने। बहरहाल, तो मैंने आपसे कहा कि स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो पेंस्पर्मिया का ऐसा कंसर्न है कि साइंटिस्ट इस बात का स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि पैन प्रेजेंस मतलब क्या होता है? वाइट प्रेजेंस। पैन प्रेजेंस मतलब क्या? वाइट प्रेजेंस। और स्पर्मा, हर कहीं सीड फैले हुए हैं। यस आई एग्री, एयर में भी स्पोर्स हैं। फंगस को थोड़ा सा बारिश, थोड़ी सी गर्मी दे दो, आपको नहीं दिखेगा लेकिन ग्रो कर जाएगा। यानी लाइफ तो पेंस्पर्मिया से ही आती है। और दोस्त आपके और मेरे केस में छोटा बीज ही तो है, छोटा सा बीज ही तो है। क्या ओवर क्या स्पर्म इज एब्सोल्युटली अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने जो नेकेड आई से देख रहा है, स्पर्म तो दिखता भी नहीं। सो हमारे केस में भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और हमारा और आपका क्या, डायनासोर के अंडे को यदि मैं बात करूं तो जो बहुत बड़ा अंडा था उसकी वो छोटी सी सेल ही तो थी। वो एल्गल स्पोर, वो पॉलन ग्रेन, है ना, वो छोटा सा ओआ, ये सब क्या है?
These are sperma which are pen presently spreaded. That's why it is called as panspermia. Kanishka. Yes, sir. समझा. बस देखिए कितना लॉजिकल वर्ड को रखते हैं ना, मतलब लॉजिकली वर्ड को रखना, उसको समझना. और ओपन चैलेंज, सिंस you people are Resonance. Resonance. Be proud, Resonate, that this chapter or this page, if anywhere in Maharashtra is dealing in such a way that we are dealing at resonance, then tell me. I'll stop teaching my way. Because ये आपको एक थर्ड एंगल, एक थर्ड आई देगा सोचने के लिए, देखने के लिए किसी भी केबीपी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इस तरीके से सोचना पड़ेगा. परफेक्ट. तो वो पढ़ेंगे अपन डिटेल में. थियरीज तो मुझे बहुत बतानी है. कुछ लोगों ने तो ये बता दिया था, लुईस पास्चर ये सब ने, कि मड जो होता है कीचड़, उससे लाइफ बनती है. अब वो भी क्यों बताएगा? देखिए इलॉजिकल कुछ नहीं था. आज भी मीथेन मड से ही मिलती है. और तो और मैं आपको बता दूं, जिस मड से मीथेन के बनने की बात की जा रही है वो आर्की बैक्टीरिया का सबसे फेवरेट हैबिटाट है. और आर्की बैक्टीरिया, द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्की द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन हायर टेम्परेचर, हायर एसिडिटी, हायर प्रेशर, वो सबसे पहला बैक्टीरिया. और यार जो ये सब एक्सप्लोजन के बाद कहीं पर रहे हो, कितना कंडेंस और कितना प्रेशराइज रही होगी लाइफ, सोचो ना. और उसके बाद एक्सप्लोजन के बाद फिर ये लाइफ के फॉर्म में अपने को. ये तो एक अपने लिए, अभी मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो मिथ है, सुना है मैंने, बस मुझे तो पता नहीं ऐसा हुआ होगा. बट यस, एविडेंसेस आर देयर जो ये बताते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा. और इसके लिए दोस्तों आई थिंक 2012 अराउंड, आई एम नॉट श्योर 12 और 2, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं. देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट जिनेवा. दैट एक्सपेरिमेंट वाज LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर. क्या नॉनसेंस अटेम्प्ट था या सेंसफुल अटेम्प्ट, आई डोंट नो. उन्होंने जिनेवा में बड़ी सी टनल बनाई थी और वही एक्सप्लोजन करने की तैयारी थी जो इस समय हुआ होगा. सी, ईदर इट्स अ नॉनसेंस रिस्क और इट्स अ वेरी जेन्युइन एक्सपेरिमेंट. फॉर्चुनेटली द एक्सपेरिमेंट वाज फेल्ड. अदरवाइज पृथ्वी पर रहते हुए बड़ी सी टनल में यदि वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करते तो मैं नहीं समझता कि मैं और आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते. यदि वाकई उस लेवल का, उस इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन हुआ होता तो शायद और एक यूनिवर्स बन गया होता, लेकिन हम लोग तो नहीं पढ़ रहे. बट वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था. ऐसा नॉनसेंस तो डेफिनेटली नहीं किया होगा. वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था. लेकिन ऐसा कोई नेचुरल फिनोमेना कंट्रोल्ड हो सकता है? आई कांट बिलीव. मैंने बहुत पढ़ा उसका, LHC का, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर. बट फॉर्चुनेटली इट वाज फेल्ड. हाँ, लेकिन उससे कुछ और जानकारियां मिली होगी कि कितना बड़ा वो हो सकता है, अनइमेजिनेबल. ये ऑलमाइटी के एक्सप्लोजन को आप और मेरे जैसे साइंटिस्ट क्या ही इमेजिन कर पाएंगे, है ना. एनीवेज, सो ये पढ़ेंगे अपन मजेदार तरीके से. मुझे अब आपके सामने मुझे चैलेंज है, बस मुझे ये बताना है कि लाइफ कैसे आई. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं समझता हूं जो 12th में नए कैंडिडेट्स हैं, 12th में कोई MF में आया हुआ है? ओके, डॉक्टर दास, डॉक्टर बोड़के, डॉक्टर वागतकर, सुन रहे हैं आप? Yes, sir. हाँ, बताओ बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. ओरिजिन ऑफ अर्थ छोड़ दिया और ओरिजिन ऑफ लाइफ पर भी आ गया. अब मैं इसके आगे कंसेप्ट बताऊंगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ. परफेक्ट. अरे शरण्या मैडम, मजा आ रहा है? Yes, sir. आयुष भाई, जादव साहेब, हो सर. पांडे साहेब, हाँ सर. उपलब्ध की का? नाही सर.
देखो कितना नादान इंसान है प्रथमेश भाई, हमारे जैसा एक नादान इंसान, एक वैज्ञानिक इस बात को समझने की कोशिश करता है कि ईश्वर ने क्या किया होगा, है ना? उसका डेयरिंग तो देखो यार, भगवान को समझने चले हम लोग हैं। तो ठीक है, इसी को तो कहते हैं अपनी हिम्मत, जो केवल इंसानों में ही दी गई है, सोचने की क्षमता, है ना? इसलिए सोचिए, स्काई इज द लिमिट, खूब सोचिए, बट डायरेक्शनल सोचिए, है ना? चलिए, अब यदि मैं बात करूं तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना है हाउ फर्स्ट लाइफ एवर एग्जिस्टेड, ये क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट? कि पहली लाइफ कैसे। तो अब बाकी नॉनसेंस मिथ की तरह क्लास खत्म होने वाली मत बोल देना सर ने भी नॉनसेंस तरीके से बिना एविडेंस के बता दिया। हर एक प्रोसेस के लिए एक एविडेंस मैं दूंगा, अग्री होंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, और आप यदि अग्री नहीं है उस बात से कि सर प्रमाण दीजिए मुझे कि ऐसा हुआ होगा जो आप कह रहे हैं, तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अपन नहीं बढ़ेंगे। चलिए, अभी जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया जिसमें ओशनिक वाटर और वाटर का बनना, क्या वाटर का बनना इस बात के लिए मुझे कोई एविडेंस देने की जरूरत है, या ये आप मान सकते हैं कि हाँ पानी था? आई एम स्टार्टिंग विद वाटर, क्योंकि बता दिया ना मैंने आपको, लॉजिकली बताया, केमिकली मैंने बताया कि पानी कैसे आया। भाई वाटर वेपर यदि कंडेंस होते हैं तो डेफिनेटली वाटर वेपर के कंडेंस होने से और फिर वो कंडेंस क्लाउड बनने से वापस गिरा नीचे पृथ्वी पर बारिश के तौर पर, और उसकी वजह से बना वो पानी। परफेक्ट। अब वो जो पानी बन गया, इसमें मुझे आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं ना लॉजिकली कि इसका फॉर्मूला H2O रहा होगा उस समय भी। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have to be agree. Yes, sir. You have to be agree. Because इसके लिए मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकता आपको। सर लेकिन तब मोल्टन लावा होगा ना पूरे अर्थ, तो फिर ओशंस कैसे बने? हाँ मान लिया ना, मोल्टन लावा ने अर्थ की सरफेस को कवर कर लिया, मान लिया मैंने। उसने जो कवर कर लिया, वो जो वाटर ओशियंस बने होंगे वो सरफेस के क्रस्ट में गड्ढा बना के ही बने होंगे ना, तेज बारिश जब आई होगी तो। दोस्त अग्री? ओके। वो वाटर और आज का वाटर, केमिकल फॉर्मूला तो बदला नहीं होगा ना दोस्त, तो उसको तो मैं H2O ही कंसीडर कर लूं। और यदि मैं H2O कंसीडर करूं तो मुझे ये भी बताने में कोई दिक्कत नहीं कि मोर हाइड्रोजन लेस ऑक्सीजन, चलेगा क्या? हाँ या ना? यस सर, यस सर। Yes. ये चलेगा तो मुझे कहने में ये भी कोई दिक्कत नहीं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर, मुझे ये भी बताने में कोई दिक्कत नहीं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूस टाइप का। भाई जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां रिडक्शन प्रेशर ही ज्यादा रहा होगा ना। और मुझे ये भी आज के साइंस वाले बताते हैं, मुझे ये भी बताने में कोई दिक्कत नहीं कि रिडक्शन का प्रेशर ऑफ बाइंडिंग और फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स वाज मोर। भाई रिडक्शन प्रेशर जब रहता है, हाइड्रोजन इजीली लूज और गेन करने की टेंडेंसी होगी, तो नए नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और जब नए नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अभी अपन ने इतना तो लिख दिया CO2, वाटर, मीथेन, क्योंकि उन सब में क्या लग रहा है जो उसमें प्रेजेंट है, और क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, C है, H है, O है, और क्या मिला, अमोनिया का N है। परफेक्ट। और ये जब यार निकले होंगे गैसियस फॉर्म में वाटर की सरफेस से, जिसे कि वर्ड मैंने कहा टू इवॉल्व, तो सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन बना होगा। सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? Aldehyde. Aldehyde, that is CHO, the simplest combination. And when this combination by default in the form of CnH2nOn, क्या बन गया होगा? क्या बन गया होगा? Sugar. Sugar. And this was the
आज भी, आज तक सबसे एफिशिएंट फ्यूल आपकी बॉडी का, 3 ही तो फ्यूल है आपके पास, एलपीसी, और ये वाला कौन सा है? Carbs. कार्ब्स। यानी देखिए किस तरीके से पहले एनर्जी सोर्स जनरेट किया है, हमने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने, पता नहीं जो भी सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी जिन्हें अपन कहते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से टेक्निकली उसको आने दिया होगा इन साइंटिफिक वे। और जब इसमें CHO में यार जुड़ गया होगा N, डू यू नो, पहला पार्टिकल प्रोटीन, Protein. फर्स्ट टीनी पार्टिकल, पहला पार्टिकल लाइफ का बना, एंड दैट वाज व्हाट? प्रोटीन। और दोस्तों जब इसमें जुड़ गया N के बाद इसमें जुड़ गया प्रोटीन प्लस सल्फर प्लस फास्फोरस, जैसे फास्फोरस जुड़ा, एक और चीज बन गई होगी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? फास्फोरस। और जैसे न्यूक्लिक एसिड बना होगा, आई एम कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ओनली, RNA डोमिनेंसी, अंडरस्टूड? Yes, sir. RNA का जब हमने जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन किया था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी अ गुड जेनेटिक मटेरियल, उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन तो ये भी था दोस्त, सेल्फ रेप्लिकेशन तो ये भी था। और यही इस बात का प्रमाण है, मैंने कहा था ना बिना एविडेंस की बात नहीं करूंगा मैं, यही इस बात का प्रमाण है कि आज भी वायरसेस, RNA वायरसेस ज्यादा है बजाय DNA वायरसेस। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये RNA वायरस, इसलिए तो मैंने कह दिया कि पहली लाइफ क्या बनी होगी, यहां से अभी भी लाइफ नहीं बनाई मैंने, RNA बनाया होगा, इसने क्या शुरू किया होगा? सेल्फ रेप्लिकेशन। लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए कुछ बॉडी तो लगेगी ना, कुछ स्ट्रक्चर तो लगेगा। तो यहां के बाद बताया जाता है पैरेलल ट्रैक पर, यहां पर शुरू हुई इओबायोन्सी, जिसके बाद शुरू हुई सिम्बायोन्सी। देखिए पहले क्या है इओबायोन्सी। इओबायोन्सी कहती है कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे ना, सब केमिकल नॉन लिविंग, ये एक दूसरे के पास जैसे बाइंडिंग हो रही थी तो एक दूसरे के पास आए होंगे, बट कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए, एक दूसरे के पास आए होंगे, ये सारे कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के पास, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक तीसरा मॉलिक्यूल, ये सब पास पास आए होंगे, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे जैसे ये बनते गए, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन बन गए होंगे, एल्डिहाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, व्हाट नॉट, जो भी बनना होगा। लेकिन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जब आए होंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, एक टेम्पररी एसोसिएशन। क्या टेम्पररी एसोसिएशन? ओ, यू कैन सिंथेसाइज फूड, फाइन, आई कैन स्टोर एनर्जी, I can store that food. Okay, fine, I can store. You can divide. My God, you can replicate. If you can replicate, I can give you food and you can respire. Why not? We three should come in aggregation. और इस बात का भी मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, इस बात का भी एविडेंस दे रहा हूं कि जब मॉलिक्यूल साथ में आते हैं, इओबायोन्सी दिखाते हैं, तो एक दूसरे में इन्वॉल्यूट हुए होंगे, अंदर फोल्ड होती गई होंगी ना भाई, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे फिटमेंट हुआ होगा ना। और इसीलिए तो मीजोजोम प्रोकैरियोटिक का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वही काम करता है जो वो प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम करता है, व्हिच इज द इनर फोल्ड। और दोस्तों यही प्रमाण है कि आपका और मेरा माइटोकॉन्ड्रिया भी आज भी इनर मेम्ब्रेन कैसी है, Folded. यू आर कनेक्टिंग, लिंक हो रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। तो Yes, sir. Yes, sir. नॉन लिविंग स्ट्रक्चर साथ साथ आए होंगे तो इओबायोन्सी, और जब उन तीनों चारों मॉलिक्यूल को मिलकर लगा होगा फाइन,
हमने तो बहुत बढ़िया एक मेम्ब्रेन बना ली है यार, हमने एक लेयर बना ली है, माइक्रोस्फीयर बना लिया हमने, छोटा सा जोन अपना, दैट इज माइक्रोस्फीयर। वो जोन, माइक्रोस्फीयर जोन रेप्लिकेट करने लगा, क्योंकि डीएनए उसमें आरएनए पड़ा हुआ था, सेल्फ रेप्लिकेट होने लगा। तो उसे लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा और स्ट्रक्चर बनाएं, और ऐसा ही और स्ट्रक्चर बना के 2 लिविंग स्ट्रक्चर सिम्बायोन की तरह साथ में आ गए होंगे कि वायरस तुम मुझ में रह लो, वायरस तुम मुझ में रह लो। तो वायरस रहा ही होगा ना, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था। वो जब यूबायोन्सी के तौर पर आया होगा तो अंदर जाके उसे लगा मैं तो सिम्बायोन्ट हो गया, तू भी लिविंग मैं भी लिविंग, दोनों ग्रो करते हैं। और जब दोनों ग्रो करेंगे तो अगली यूनिट में आएगा कंसेप्ट को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन कंसेप्ट कहता है प्लांट तब तक डेवलप नहीं हो सकते जब तक इंसेक्ट डेवलप नहीं, और इंसेक्ट तब तक ग्रो नहीं कर सकते, इवॉल्व नहीं हो सकते जब तक प्लांट डेवलप। क्यों? प्लांट बर्ड्स के बिना अधूरे, पॉलिनेशन करेगा कौन? और बर्ड्स प्लांट के बिना अधूरे, खाएंगे क्या? तो कोइवोल्यूशन का कंसेप्ट इस सिम्बायोन से शुरू हुआ होगा, और सिम्बायोन का मीनिंग मैंने लास्ट ईयर बताया। व्हाट इज द डेफिनेशन? लिविंग इन कोरिलेशन विथ अनदर ऑर्गेनिज्म। अरे दोस्त, खूबसूरत सी डेफिनेशन दो, इतना खूबसूरत सा बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अरे दोस्त थोड़ा तो खूबसूरती पे आओ। आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर इज व्हाट? सिम्बायोन। सिम मतलब साथ साथ, बायो मतलब लाइफ, सिम्बायोन, आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, दैट इज सिम्बायोन्सी। और जब ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर हुआ होगा तो को एग्जिस्ट किए होंगे, को इवोल्यूशन हुआ होगा, और मोनेरा के साथ प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के साथ फंजाई, और फंजाई के साथ प्लांटे, और प्लांटे के साथ एंडेलिया डेवलप। तो इन सच अ वे, this is which is scientifically proven, this theory was proposed not by Patek, was proposed by Oparin and Haldane, Oparin and Haldane। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेबीएस हेल्डेन साहब का पूरा परिवार ओडिशा के भुवनेश्वर में रहने वाला, वो फैमिली भुवनेश्वर की फैमिली है, ओडिशा, जेबीएस हेल्डेन। तो ओपेरिन और हेल्डेन साहब ने ये केमिकल ओरिजिन दी, और इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया, इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया कीमोजेनेटिक लॉ। जो मैंने आपको बाद में बताना था, और पहले बताना था अबायोजेनेटिक, लेकिन मैंने पहले कंसेप्ट बताया। अब मैं वो मिथ बताऊंगा जो लोग कहते थे कि नॉन लिविंग से बन गया होगा, अबायोजेनेटिकली बन गया होगा, बायोजेनेटिकली बन गया होगा। मैं तो बिलीव करता हूं कीमोजेनेटिक लॉ, और ऐसे पहले लाइफ बनी होगी दोस्तों, और फिर इस छोटी सी प्रोटोवायरस सी लाइफ से आप जैसे बेहद खूबसूरत लोग बने होंगे, जिसे मैं कहता हूं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कंसेप्ट समझ में आया क्या दोस्तों कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अब ये Yes, concept- sir. एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बिफोर लीविंग द क्लास, इट्स 7 minutes I have, I am sharing an image and explaining this with a complete proof or simulation experiment। अब simulation experiment मतलब क्या होता है? Simulation experiment, वेदांत भाई, आयुष भाई सुन रहे हैं? यस सर। कृष्णा, अथर, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आपके और मेरी तरह एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, यूरे मिलर, ये 2 सर और स्टूडेंट थे, ऐसे इंटरेस्ट आ गया उनको पढ़ते पढ़ते, जैसा मैं आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया रिसर्च कर डाली, और यार बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट कर लिया उन्होंने, साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट मतलब इन लोगों ने लेबोरेटरी में वैसी ही कंडीशन जनरेट की जैसा कि इन्होंने लिटरेचर में पढ़ा था कि ऐसा रहा होगा, but suddenly what they found, yes, amino acid forms, protein forms। तो उस समय के कहना चाहिए शुड से थंडर, या जो बिजली कड़की होगी, वो आज का अपना इलेक्ट्रोड, जो चार्ज आपने दिया होगा पावर सप्लाई। उस समय की बारिश जिसकी वजह से ठंडा हुआ, आज का कंडेंसर। तो वैसा ही साइमुलेशन किया गया, तो क्या बना? तो उनको मिला हेल्डेन सूप। हेल्डेन सूप मतलब हेल्डेन का सूप नहीं निकाला, जो पहला लिक्विड बना उसे कहा गया हेल्डेन सूप।
See how the brilliant experiment it is. I'm sharing an image. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. In the screen आपको लेबल करते चलना है एनसीईआरटी का डायग्राम है ना. मैं जहां जहां बताऊं वहां लेबल करेंगे बस बच्चों. मैं बताता चल रहा हूं पहले. इफ यू कैन सी देन सबसे पहले मैं बॉइलिंग वाटर लगाता हूं. बॉइलिंग वाटर को मैंने साइमुलेशन बता दिया किसका, इवेपोरेशन, क्योंकि उस समय इवेपोरेट हुआ ना. तो आज मैं कैसे करूंगा उसको इवेपोरेट, भाई गिविंग हिम हीट. तो बॉइलिंग वाटर के नीचे मैंने लिख दिया साइमुलेशन ऑफ इवेपोरेशन, साइमुलेशन ऑफ इवेपोरेशन. चलिए भाई वाटर बॉइल हुआ. वाटर बॉइल होने के बाद वहां पर चूंकि ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है ना, कंट्रोल करने के लिए मैंने एक स्टीम बाहर निकालने का तरीका भी लगाया, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा कुछ. भाई उस समय तो क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, करोड़ों साल पहले, बट आज तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है ना. सो आई नीड टू मेक इट कंट्रोल्ड इन अ लेबोरेटरी. तो थोड़ा सा वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए मैंने उसमें एक स्टीम निकालने वाला पार्ट बना दिया. ऊपर से आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, तो मैंने एक वैक्यूम पंप भी डाला. और क्योंकि डक्ट में कहीं स्टीम ज्यादा ना बन रही हो, तो वो मैंने वैक्यूम भी क्रिएट करने के लिए सीन बना दिया कि उसको मुझे स्टीम के अलावा कुछ नहीं चाहिए वहां. फिर मैं जाता हूं ऐसे ही एक किसमें, बड़े से कंटेनर में, जिसमें मैंने रखा है यार वाटर, अमोनिया, CH4, और उसको दे दिया मैंने इलेक्ट्रोड. और इलेक्ट्रोड मतलब व्हाट, जिसमें स्पार्क डिस्चार्ज किया. दिस इज साइमुलेशन ऑफ लाइटनिंग. उस समय जो बिजली बिजली कड़की होगी, जहां लिखा है स्पार्क डिस्चार्ज, वहां लिखेंगे साइमुलेशन ऑफ लाइटिंग. साइमुलेशन ऑफ लाइटिंग, दैट इज व्हाट, स्पार्क डिस्चार्ज. हाँ, एक बात जरूर, जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस लिए, एक फिक्स अमाउंट लिया, और वो मैंने लिख रखा है 2:1:2. CH4 2 रेशो हाइड्रोजन 2 रेशो अमोनिया 1, 2:1:2. तो वहां लिख लीजिए CH4 के सामने 2, हाइड्रोजन के सामने 2, अमोनिया के सामने 1. सो 2:1:2. तो ये ध्यान रखिए क्या है, ये 1:2 भी पूछा जा सकता है, 2:1 भी पूछा जा सकता है. नीट का परमानेंट क्वेश्चन कि उन्होंने किस रेशो में लिया था, किस प्रोपोर्शन में लिया था, वो प्रोपोर्शन मैंने बताया. बराबर. अब जब स्पार्क डिस्चार्ज किया गया, इलेक्ट्रोड से करंट उसमें दिया गया, तो कंडेंसर के तौर पर, जिसे मैं साइमुलेशन ऑफ रेन ले रहा हूं, देखिए कंडेंसर, साइमुलेशन ऑफ रेन, कंडेंसर, साइमुलेशन ऑफ रेन, यानी एक तरह से वाटर इन और दूसरे से वाटर आउट, ताकि वो कंडेंस करे. तो वो जो गर्म होके स्पार्क से रिएक्शन होके ठंडा करने के लिए मैंने कंडेंसर लगाया, जैसा कि मान के चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि पृथ्वी पर ऐसा हुआ होगा. उस कंडेंसर के बाद नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स आई, और नीचे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई, उसमें मैंने देखा तो क्या मिला मुझे, इट वाज कंटेनिंग सरप्राइजिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स. वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स. कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ये तीनों. और साइंस कहता है कि सबसे पहले मिला ग्लाइसिन, अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, और सबसे पहले मिला कौन सा, ग्लाइसिन. मतलब लाइफ का मुझे मिल गया, एक लाइफ का मुझे एविडेंस चाहिए था कि क्या ऐसा किस करने से, जो कि आप सारा लिटरेचर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो क्या ऐसा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में करने पर कुछ बनता है. यस, प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बन गए ना अमीनो एसिड, इसी से तो प्रोटीन बनना है. तो पहले छोटे छोटे अमीनो एसिड बने होंगे, फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन किया होगा, आरएनए के अराउंड आरएनए डोमिनेट रहा होगा, तो प्रोटीन बन गया होगा और लाइफ बन गई होगी. सो दिस एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट द साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ड्यूरे एंड मिलर.
Doctors understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बच्चों अब मैं सर हाँ बोलो। सर मतलब हम ऑर्गेनिज्म भी लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ऑर्गेनिज्म भी लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि क्या मैं आप छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इंसान बना सकता हूं। दैट इज ओनली क्लोनिंग। मुझे एक जीन दे दीजिए, जीन लिविंग है कि नॉन लिविंग? विधान नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, उस जीन से पूरा इंसान बनाया जा सकता है ना। हाँ बस दैट्स इट। सर जीन्स से हाइब्रिड भी बनाते हैं ना? अब अरे बिल्कुल बनाया जा सकता है दोस्त। अग्री? यस सर। चलिए अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेज नंबर 128 तक आप पढ़ के रखोगे। मैं तो 129 से आगे का पढ़ाना शुरू करूंगा दोस्तों। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, कहानी की तरह पढ़िएगा बड़े मजे से। उसके आगे मत जाइएगा, 129 के आगे मत जाइएगा, क्योंकि 130 को देख के डर मत जाइए। 130 पर बड़े बड़े से डायनासोर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो घबरा मत जाइएगा, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा उसको, है ना। तो 129 तक बढ़िया से पढ़ के रखिए, आगे की कहानी सुनेंगे ब्रेक के बाद। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Sir. sir. यस सर। So I hope, Priya madam, we enjoyed a lot in today's class. Yes, sir. Samiksha Vag, Salonis, Swami ji, Riya Kotamde, Yes, Isha sir. Gaitan, Rashmi madam, Dr. Rashmi Suryavanshi, you are alive? Yes. Ved Bhandarkar, Vaibhav Bachao, Yes, Tejas yes, Gandhi, sir. शिरोडे साहेब, Yes, sir. शिरोडे साहेब ऐकलं की नाही? शिरोडे साहेब तो सो गए। चतुर्वेदी जी, चलिए कोई बात नहीं। I hope you learned a lot today about the life and about and all these concepts. Please go through this, अच्छे से इसको पढ़िए, रीड कीजिए, इवन मॉड्यूल को भी पढ़िए, मॉड्यूल में मजेदार दिया हो, मॉड्यूल को भी पढ़िए। आगे का पढ़ते हैं अपन एविडेंसेस के साथ साथ the next class. I'm going to close the session. Any doubt? Any doubt? नो सर। नो सर। No, sir.